Hello student, today I am going to solve NIS 328 Psychology question paper of November-December 2021. This question paper consists of 35 questions. Maximum marks is 100 and passing marks is 30. Time duration is 3 hours. Attempt all questions from section A and only one option from section B. See description for link of February 2021 solved question paper of 328 Psychology. Section A 1. Perception is influenced by many factors. Which of the following are the most common? A. Needs and motives. प्रत्यक्षीकरण कई कारकों से प्रभावित होता है. निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक सुलभ हैं? A. आवश्यकताएं एवं प्रयोजन. 2. डेवलपमेंट ऑकर थ्रू विच टू मेन प्रोसेस? A. मैचुरेशन एंड लर्निंग. विकास किन दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है? A. परिपक्वता तथा सीख. 3. In the psychoanalytic approach, focus is on a person's D. aim and aspiration. मानव विश्लेषक दृष्टिकोण में व्यक्ति के उद्देश्य तथा चाहत पर केंद्रित किया जाता है. 4. Group involves interdependence of which of the following factor? A. Behavior and outcome. निम्न में से किस कारक पर समूह की परस्पर निर्भरता निहित है? A. व्यवहार तथा परिणाम. 5. Which of the following is a type of environment? D. All of them. निम्न में से कौन सा पर्यावरण का एक प्रकार है? D. उपरोक्त सभी. 6. What is nerve impulse? तंत्रिका आवेग क्या है? Nerve impulse. An information is carried through a series of electrical impulses that travel from one neuron to another. These are called nerve impulses. तंत्रिका आवेग विद्युतीय आवेशों की श्रृंखला के माध्यम ये एक सूचना आती है जो कि एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में जाती है. इन्हें तंत्रिका आवेग कहा जाता है. 7. रीता हैज़ द मेंटल एज ऑफ 12 ऑन हर 10th बर्थडे. व्हाट इज़ हर IQ? रीटा की 10वें जन्मदिन पर मानसिक आयु 12 है. उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? IQ बुद्धि लब्धि इक्वल टू 12/10 इंटू 100 इक्वल टू 120. 8. What is self-esteem? आत्मसम्मान क्या है? Self-esteem. It is the evaluative component of self-concept. It basically deals with internalized social judgments and ideas about how worthwhile a personal quality is. Self-esteem is an important factor in one's psychological health. आत्मसम्मान यह आत्म संप्रत्ययत का मूल्यांकन करने वाला घटक है. यह मूल रूप से आंतरिक सामाजिक निर्णयों से और व्यक्तिक गुण कितने सार्थक हैं के विचारों से संबंध है. आत्मसम्मान किसी के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण कारक है. 9. व्हाट इज साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट? मनोवैज्ञानिक पर्यावरण क्या है? Psychological environment. It includes the perceptions and experiences pertaining to any environmental setting. Some environments may be stimulating and exciting while other may be dull and boring. Expression of psychological is often used in the organizational context. मनोवैज्ञानिक पर्यावरण इसके अंतर्गत पर्यावरण के किसी समुच्चय से संबंधित प्रत्यक्षीकरण और अनुभव आते हैं. कुछ पर्यावरण उत्तेजक हो सकते हैं जबकि दूसरे शिथिल और उबाऊ. मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति बहुधा संगठनात्मक संदर्भ में प्रयोग होती है. 10. हाउ कैन प्राइमरी प्रिवेंशन प्रमोट वेल बींग? प्राथमिक रोकथाम किस प्रकार कुशलक्षेम को प्रोन्नत कर सकती है? प्राइमरी प्रिवेंशन It tries to reduce or eliminate the occurrence of preventable illness and injury. It involves helping people learn about behavior and health, promoting motivation and necessary skills to practice healthy behavior, and modifying poor health practices. It also involves generating awareness about immunization. प्राथमिक रोकथाम इसमें रोके जा सकने वाले रोग या चोट के घटने को कम या समाप्त किया जा सकता है. इसके अंतर्गत व्यवहार और स्वास्थ्य अभिप्रेरण स्वस्थ व्यवहार के अभ्यास को प्रोन्नत करने और गिरे स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कौशलों को सिखाने में सहायता करना आता है. 11. व्हाट आर द इथिकल कंसिडरेशन इन साइकोलॉजिकल स्टडीज़? मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में कौन से नैतिक विचारों को अपनाना होता है?
1. Informed consent. The investigator can conduct a study on other persons only after obtaining their prior permission to do so. 2. Confidentiality. The findings of research remain confidential and are not disclosed with anybody. 3. Debriefing. If some kind of manipulation or dissipation has been done in the study, the researcher has the duty to clarify that to the participants after completing the studies. 4. Right to withdrawal. The participant have a right to withdraw from the study if they desire to do so. 5. Responsibility. The researcher has to bear the responsibility of any harm done to the participant during the course of study. 1. सूचित सहमति. शोधकर्ता दूसरे व्यक्तियों से पूर्व सहमति लेने के बाद ही उनके ऊपर अध्ययन कर सकते हैं. 2. गोपनीयता. शोध के जांच परिणाम को गोपनीय रखा जाता है तथा इसे किसी को भी नहीं बताया जाता है. 3. जानकारी देना. यदि किसी प्रकार का छल, धोखा या भ्रम अध्ययन में किया जाता है तो शोधकर्ता का कर्तव्य होता है कि वह अपने अध्ययन को पूरा करने के बाद प्रतिभागी को स्पष्ट कर दे. 4. वापसी का अधिकार. प्रतिभागियों को अध्ययन से अपने को अलग करने का अधिकार होता है यदि वह ऐसा करना चाहता है. 5. उत्तरदायित्व. अध्ययन के दौरान प्रतिभागियों को हुई क्षति के लिए शोधकर्ता उत्तरदायी होता है. 12. एक्सप्लेन द मोस्ट कॉमन ह्यूमन इमोशंस वन कैन एक्सपीरियंस. अत्यधिक सामान्य मानव संवेदन का अनुभव कोई कर सकता है, उनकी व्याख्या कीजिए. 1. फियर. Fear is caused by situations which are perceived as physically threatening. The situation that produce fear change with age. 2. Anxiety. Anxiety is a state of painful discomfort of mind. During anxiety, a vague fear or apprehension occurs. You may feel anxious if you don't know the exact cause. 3. Pleasure. Pleasure or happiness is a positive emotion which gives satisfaction to the person who experiences it. Pleasure is the reaction to the satisfaction of a need or an attainment of a goal. 4. Affection. It is a pleasant emotional reaction directed towards a person, an animal, or an object. It is built up as a result of pleasant experience. 1. भय. भय उन स्थितियों के कारण होता है जिन्हें शारीरिक रूप से खतरनाक माना जाता है. डर पैदा करने वाली परिस्थितियां उम्र के साथ बदलती हैं. 2. चिंता. चिंता मन की दर्दनाक बेचैनी की स्थिति है. चिंता के दौरान एक स्पष्ट भय या आशंका उत्पन्न होती है. यदि आप सटीक कारण नहीं जानते हैं तो आप चिंतित महसूस कर सकते हैं. 3. खुशी. खुशी या खुशखबरी एक सकारात्मक भावना है जो इसे अनुभव करने वाले को संतुष्टि देती है. आनंद किसी आवश्यकता या लक्ष्य की प्राप्ति के संतुष्टि की प्रतिक्रिया है. 4. स्नेह. यह किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के प्रति निर्देशित एक सुखद भावनात्मक प्रतिक्रिया है. यह सुखद अनुभव के परिणाम स्वरूप बनाया गया है. 13. एलोबरेट ऑन द फर्स्ट 4 मास्लोज हैचरी ऑफ नीड्स. मास्लो की पहली 4 आवश्यकता अधिक्रम का विस्तार दीजिए. 1. फिजियोलॉजिकल नीड्स. The most important and lowest level of all the needs are physiological needs. Hunger, thirst, sex, temperature regulation and rest are the lowest level of needs. 2. Safety needs. Safety needs are mainly concerned with maintaining order and security to feel secure, safe and out of danger. 3. Love and belongingness needs. These are the needs of making intimate relationship with other members of the society. People want to become an accepted member of an organized group, need a familiar environment such as family. The esteem needs. Esteem needs are divided into the following 2 categories. A. Need related to respect from others like reputation, status, social success and fame. B. Self-esteem, self-respect and self-regard. 1. शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं. शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं समस्त आवश्यकताओं में सबसे प्रबल हैं और सबसे निचले स्तर की आवश्यकताएं हैं. भूख, प्यास, सेक्स एवं आराम आदि की आवश्यकताएं सबसे निचले पायदान पर होती हैं. 2. सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं. सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं मुख्य रूप से व्यवस्था एवं सुरक्षा को बनाए रखने से संबंधित होती हैं ताकि व्यक्ति सुरक्षित, भय मुक्त तथा खतरों से बचा रहे. 3. प्रेम एवं लगाव संबंधी आवश्यकताएं. समाज के अन्य सदस्यों के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता प्रेम एवं लगाव संबंधी आवश्यकताएं हैं. लोग किसी संगठित समूह का स्वीकार्य सदस्य बनना चाहते हैं तथा एक पारिवारिक परिवेश में रहना चाहते हैं जैसे कि परिवार.
4. सम्मान संबंधी आवश्यकता। प्रतिष्ठा संबंधी आवश्यकताएं निम्नलिखित 2 वर्गों में विभक्त हैं। क. दूसरों के से सम्मान प्राप्त करने से संबंधित आवश्यकता जैसे इज्जत, सामाजिक रुतबा, सामाजिक सफलता एवं प्रसिद्धि। ख. आत्म प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान एवं आत्म आदर। 14. डिस्क्राइब डिफरेंट वेज टू इन्हेंस मेमोरी। स्मृति संवर्धन के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। 1. Organization. While preparing for learning, a learner needs to organize the material in some form. Such an organization may help by creating a natural context and provide relevant cue while retrieving the learned material. If the material lack natural organization, an artificial organization may be created by the learner. 2. Concentration. One of the main reasons of forgetting is inadequate allocation of attentional resources to the material while processing the same. As a result, the material is not stored and we fail to recall when we need it. Thus, by focusing attention on the material while processing, we can increase the probability of storage and recall. 3. Method of Loci. As the name implies, this technique uses associations with the place or task. The visualization of the same provides cue for recalling the task. By choosing any action properly, one can use memory at any point in the day. Use of such mnemonic codes allow one to have vivid and distinctive associations between new information and prior knowledge. Being related to context, the cue becomes very effective. For instance, one may have a clear visual image of a building, its room, furniture and other details. This may be linked to different ideas, and using this linkage, memory of those ideas can be enhanced. For recoding. While dealing with non-meaningful material, one may record the items to be remembered in a more meaningful manner. Recording may take many forms. For example, people may use the first letter of all the items and make a sentence. This kind of the narrative structure works as a cue. Acronyms are also used for the purpose in which all the first letter are used. Using elaboration, one may add more information which makes the material distinct. Chunking is a good example of recording. If a large serial of numbers is presented, it becomes difficult to remember. The same, however, may be divided into 2 or 3 chunks in some meaningful way. Using equanimity, using elaborative coding, one may put many items in a story form and recall the same easily. 1. संगठन. सीखने वाले व्यक्ति को याद करने के लिए सामग्री तैयार करते समय उसे किसी रूप में संगठित कर लेना चाहिए। प्राकृतिक संदर्भ के सृजन द्वारा ऐसे संगठन में मदद मिलती है तथा याद की गई सामग्री को प्रत्यानयन करते समय संगत संकेत भी प्राप्त होते हैं। यदि सामग्री में प्राकृतिक संगठन का अभाव होता है तो सीखने वाले द्वारा कृत्रिम संगठन का सृजन किया जाना चाहिए। 2. एकाग्रता. विस्मृति का एक मुख्य कारण है सामग्री को संसाधित करते समय अवधानिक स्रोतों का अपर्याप्त आवंटन होना, जिसके परिणाम स्वरूप सामग्री भंडारित नहीं होती है तथा आवश्यकता पड़ने पर हम उसे पुनः स्मृति नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार सामग्री के संसाधित किए जाने के समय ध्यान केंद्रित करने से हम भंडारण एवं पुनः स्मृति की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। 3. लोकाई की पद्धति. जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, इस तकनीक में स्थान या कार्य से संबंधों का प्रयोग किया जाता है। इसका दृश्यीकरण कार्य को पुनः स्मृति करने में संकेत उपलब्ध कराता है। किसी क्रिया को उचित ढंग से चयन करके व्यक्ति दिन के किसी भी बिंदु पर उस स्मृति का प्रयोग कर सकता है। ऐसे स्मृति कूटों का प्रयोग करने से व्यक्ति नई सूचना तथा पूर्व ज्ञान के मध्य सुस्पष्ट तथा विशिष्ट संबंध बना सकता है। प्रसंग से संबंध बनाए रखने से संकेत बहुत प्रभावित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को एक भवन, उसके कमरों, फर्नीचर तथा अन्य विवरणों की स्पष्ट दृश्य छवि हो सकती है। ये विभिन्न विचारों से संबंधित हो सकते हैं तथा इन संबंधों का प्रयोग करके इन विचारों को स्मृति को बढ़ाया जा सकता है। 4. पुनः कुटीकरण. अर्थहीन सामग्री से निपटते समय व्यक्ति स्मृति की जाने वाले मदों को अधिक अर्थपूर्ण तरीके से पुनः कुटित कर सकता है। पुनः कुटीकरण कई रूप ले सकता है। उदाहरण के लिए, लोग सभी मदों को प्रथम अक्षर का प्रयोग करके एक वाक्य बना सकते हैं। इस प्रकार का वर्णात्मक ढांचा संकेत का काम करता है। परिनिर्वर्ती शब्दों
का प्रयोग भी इस उद्देश्य के लिए किया जाता है, जिसमें सभी प्रथम अक्षरों का प्रयोग होता है। विस्तारण का प्रयोग करके और अधिक सूचना शामिल की जा सकती है जो सामग्री को अधिक अर्थपूर्ण बनाती है। चकिंग पुनः कूटीकरण का एक उदाहरण है। बरहा इसे विविधता का प्रयोग करके 2 या 3 अर्थपूर्ण टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। बहुत कूटन का प्रयोग करके व्यक्ति कहानी के रूप में अनेक मदों को प्रस्तुत कर सकता है तथा उसे पुनः स्मृति कर सकता है। 15. What are the various approaches to study development? Explain briefly. विकास के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण क्या है, संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। The two main approaches to studying development are: 1. Cross-sectional approach. It implies studying several representative children of different ages at the same point of time. There is usually only one observation for each child, and development changes are identified by including children of different age in the study. Advantages: 1. It prevents the loss of sample strength which occur in study of long duration. 2. It is cost-effective, saves times, and facilitates record keeping. Disadvantage: 1. The totality and the individuality of the person is lost. 2. There is a loss of development continuity in studying the persons in the sample. 2. Longitudinal approach. This approach emphasizes on the study of the same person over a period of time, noting the stability and changes taking place during that time span. Disadvantages: it is time consuming and expensive. Repeated testing makes the subjects test wise, which affects the scores. विकास के दो प्रमुख अप्रोचों का अध्ययन इस प्रकार है। 1. प्रतिनिधात्मक दृष्टिकोण। यह अध्ययन विभिन्न आयु वाले कुछ प्रतिनिधि बच्चों पर समान समय पर किया जाता है। समांतर प्रत्येक बच्चे के लिए केवल एक निरीक्षण किया जाता है। अध्ययन में विभिन्न आयु वाले बच्चे को शामिल करके विकासात्मक परिवर्तनों की पहचान की जाती है। लाभ: लंबी अवधि के अध्ययनों में यह प्रतिदर्श शक्ति की हानि को रोकता है। यह कम खर्चीला, समय की बचत करने वाला तथा अभिलेख के रखरखाव में सुविधाजनक है। हानियाँ: व्यक्ति की समग्रता तथा व्यक्तिगतता नहीं रहती। प्रतिदर्श में व्यक्ति के अध्ययन में विकासात्मक निरंतरता की हानि होती है। 2. अनुद्देश्य दृष्टिकोण। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि पूर्ववर्तित दृष्टिकोण की तुलना में यह विकास का लंबाई के आधार पर अध्ययन है। यह दृष्टिकोण समान व्यक्ति के अध्ययन पर बल देता है। कमियां: दीर्घावधि के लिए बड़े प्रतिदर्श के से संपर्क बनाए रखने में कठिनाइयां आती हैं। इसमें ज़्यादा समय लगता है और खर्चीला भी है। सब्जेक्ट पर परीक्षणों को बार बार संपादित किया जाता है जिससे अंक प्रभावित होते हैं। 16. According to Piaget, there are 4 stages of कॉग्निटिव डेवलपमेंट। डिस्कस। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं, चर्चा कीजिए। अकॉर्डिंग टू पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस थ्रू 4 मेजर स्टेजेस। 1. सेंसरी मोटर, birth to 2 years is characterized by reflex actions of the infants. 2. Pre-operational, 2 to 7 years. A. Pre-operational, 2 to 4. B. Intuitive, 4 to 7. Children during this period are egocentric and do not have the concept of object permanence. 3. Concrete operation, 7 to 12 year. Children of this age are able to differentiate themselves from the environment, learn about the object permanence and do goal directed behaviors. They can arrange things or objects in a sequence. 4. Formal operation, 12 plus years. During this period, children are able to do abstract reasoning and are able to think like adults. पियाजे के अनुसार 4 प्रमुख चरणों के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है। 1. संवेदी गति, जन्म से 2 वर्ष। शिशुओं की प्रतिवर्त क्रिया द्वारा इसके लक्षण प्रतिबिंबित होते हैं। 2. संक्रिया पूर्व, 2 से 7 वर्ष। अ. पूर्व संप्रत्यत, 2 से 4। ब. अंत ज्ञानी, 4 से 7। इस अवधि के दौरान बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं और उनमें वस्तु स्थायित्व की अवधारणा नहीं होती। 3. मूर्त संक्रिया, 7 से 12 वर्ष। इस आयु वाले बच्चे अपने आप को वातावरण से अलग करने में सक्षम होते हैं, वस्तु की उपस्थिति का ज्ञान होता है और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं। वे चीज़ों और वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। 4. औपचारिक संक्रिया, 12 प्लस वर्ष। इस अवधि के दौरान बच्चे तर्क दे सकते हैं, पूर्ण व्यक्ति के समान सोच विचार करने में सक्षम होते हैं। 17. अकॉर्डिंग टू फ्रायड, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी? फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना क्या है? फ्रायड बिलीव दैट
human personality emerges due to a conflict between our aggressive and pleasure seeking biological impulses and the internalized social restraints against them. Thus, personality arises in the occur of our effort to resolve the conflicts. To this end, he proposed three structures which interact with each other: ID, ego, and superego. ID. It is the unconscious, irrational part of personality. It is the primitive part immune to morality and demands of the external world. It operates on the pleasure principle. It seeks immediate satisfaction. Ego. It is involved with the working of the real world. It operates on the reality principle. It is the conscious and rational part of personality that regulates thoughts and behavior. It teaches the person to balance demands of external world and need of the person. Superego. It is the internal representation of parental and societal value. It works as the voice of conscience that compels the ego to consider not only the real but also the ideal. It judges one's behaviors as right or wrong, good or bad. Failing up to moral ideals bring about the same guilt, inferiority and anxiety in the person. फायड का विश्वास है कि व्यक्तित्व का अविभाव हमारे आक्रामक प्रवृत्ति तथा सुखद जैविकी आवेग तथा अंतःकरण सामाजिक प्रतिस्पर्धा के बीच विवाद के कारण होता है। इस प्रकार व्यक्तित्व उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब हमारा प्रयास विवादों को सुलझाने का रहता है। अंततः वह तीन संरचनाएं प्रस्तुत करता है जो कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं: इंद्र, अहम, स्वाभिमान और सुपर ईगो अत्यधिक स्वाभिमान। ईद यह व्यक्तित्व का अचेतन विवेकहीन भाग होता है। यह नैतिकता का प्रतिरक्षित हिस्सा है और बाहरी देश की मांग है। यह सुख सिद्धांत पर कार्य करता है। यह शीघ्र संतुष्टि की कोशिश करता है। अहम यह वास्तविक संसार के साथ विद्यमान रहता है। यह वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह व्यक्तित्व का सचेतन तथा विवेकपूर्ण हिस्सा होता है जो कि विचारों तथा व्यवहारों को विनियमित करता है। यह व्यक्ति को बाहरी देश के संतुलित मांग तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं के बारे में बताता है। अत्यधिक अहम यह पैतृक तथा सामाजिक मूल्यों के आंतरिक प्रतिनिधित्व करता है। यह सचेतन की आवाज़ के रूप में कार्य करता है जो न केवल वास्तविक बल्कि आदर्शवाद और विचार के लिए दबाव डालता है। यह व्यक्तियों के व्यवहारों का सही अथवा गलत, अच्छा और खराब के रूप में बताता है। एक व्यक्ति में नैतिकता तथा आदर्शवाद के अभाव होने पर वह शर्म, दोषी, कुंठा, निकष्टता तथा चिंता महसूस करता है। 18. According to the Indian approach to personality, elaborate on the concept of gunas. व्यक्तित्व के लिए भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार गुणों की अवधारणा का सुविस्तार दीजिए। Sattva-guna. The main attributes which characterize Sattva-guna are truth, gravity, duty, discipline, detachment, cleanliness, mental balance, sense of control, determination, and sharp intelligence. Rajas-guna. A person dominated by Rajas-guna has attributes that include vigorous activity, desire for sense gratification, dissatisfaction, envy, and materialistic point of view. Tamas-guna. It involves anger, arrogance, mental imbalance, depression, laziness, procrastination, and a feeling of helplessness. Bhagavad Gita view the three guna in a prototypical form and describe that the food which we eat mentality, buddhi, charity, dan, etc. can also be characterized in the three type of gunas or qualities. सत्व गुण मुख्य विशेषता जो कि सत्व गुण को प्रतिपादित करती है वह है सत्य, गंभीरता, कर्तव्य, अनुशासन, अनासक्ति, स्वच्छता, मानसिक संतुलन, संवेदना का नियंत्रण, प्रतिबद्धता तथा कुशाग्र बुद्धि है। राजस गुण वाले व्यक्ति की विशेषताओं में प्रभावशाली क्रियाकलाप, संवेदना के तुष्टीकरण की इच्छा, असंतुष्टता, ईर्ष्या तथा मौक्तिकवादी विचारधारा शामिल है। तमस गुण इसमें क्रोध, अहंकार, मानसिक असंतुलन, उदासी, आलस, लिंबकारी तथा असहाय का अनुभव शामिल है। भगवत गीता में आदि पुरुष में 3 गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे खाने में मानसिकता, चैरिटी, दान आदि की गुणों अथवा विशेषताओं के 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। 19. आइडेंटिफाई द रीजन्स वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स। उन कारणों की पहचान कीजिए कि लोग समूह में क्यों सम्मिलित होते हैं। 1. People join a group because groups helps to achieve those goals that one cannot attain individually. For example, you join a group because your friend or teacher is a member of the group,
2. You join a group because you feel that the group members have resources which can at times be helpful to you. 3. People often join a group to meet the need for security. People get protection when they become members of particular groups. 4. Groups help to provide positive social identity to its member. People who are member of various groups tends to have a positive feeling and positive self-appreciation simply because of being members of the group. In brief, people join group because group help achieving goals, have resources, meet the need for securities and provide social identity. 1. लोग समूह का सदस्य इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि समूह उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं जो कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं प्राप्त कर सकता। उदाहरण के लिए आप किसी समूह के सदस्य इसलिए बनते हैं क्योंकि आपका मित्र या शिक्षक उस समूह का सदस्य है। 2. आप किसी समूह के सदस्य इसलिए बनते हैं क्योंकि आपको लगता है कि समूह के सदस्य संसाधनों से युक्त हैं जो किसी समय आपकी भी मदद कर सकते हैं। 3. कभी कभी लोग सुरक्षा की आवश्यकता पूरी करने के लिए किसी समूह का सदस्य बनते हैं। लोग सुरक्षा पा जाते हैं तब वे एक निश्चित समूह के सदस्य बन जाते हैं। 4. समूह अपने सदस्यों को एक सामाजिक सकारात्मक पहचान प्रदान करते हैं। लोग जो विभिन्न समूहों के सदस्य होते हैं उनमें अमुक समूह का सदस्य होने के नाते सकारात्मक अनुभूति और सकारात्मक आत्म प्रशंसा पैदा होती है। सारांश में लोग समूह का सदस्य इसलिए बनते हैं क्योंकि समूह लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करते हैं, संसाधन युक्त होते हैं, सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और सामाजिक पहचान प्रदान करते हैं। See description for link of February 2021 solved question paper of 3 to 8 Psychology. 20. What is the effect of group on individual? किसी व्यक्ति पर समूह का क्या प्रभाव पड़ता है? Decision making. It has been found that while taking decisions, an individual, when left alone, takes less risk. On the other hand, when he or she is present in a group, there appears a tendency on the part of an individual to take greater amount of risk. The group as a whole takes greater risk than the individual. This phenomenon is popularly known as risk shift. Social facilitation. Social facilitation refers to the influence of the presence of other persons on one's performance. Try to recall your own behavior. When you are performing an easy task or something which you know very well, there is a possibility that other group members, such as parents or teachers, will evaluate your work and you try to show your best performance. On the other hand, such awareness interfaces with your ability to perform when the task is complex and your performance decreases. निर्णय लेना. देखा गया है कि अकेला होने पर व्यक्ति निर्णय लेते समय कम जोखिम लेता है। दूसरी ओर एक समूह में रहने पर यह दिखाई पड़ता है कि व्यक्ति अधिक जोखिम लेने को समूह प्रक्रम तत्पर हो जाता है। एक पूरा समूह व्यक्ति की अपेक्षा अधिक जोखिम लेता है। यह घटनाक्रम जोखिम बदलाव जाना जाता है। सामाजिक सुविधा. सामाजिक सुविधा उस प्रभाव की ओर इंगित करती है जो दूसरों की उपस्थिति से किसी व्यक्ति के कार्य निष्पादन पर पड़ता है। अपने व्यवहार का स्मरण करें जब आप कोई सरल कार्य संपादित कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में एक संभावना होती है कि समूह के दूसरे सदस्य जैसे माता पिता या शिक्षक आपके कार्य का मूल्यांकन करेंगे और आप अपना सर्वोच्च कार्य निष्पादन दिखाने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर ऐसी सजगता आपके कार्य निष्पादन की योग्यता में व्यवधान डालती है जबकि कार्य जटिल है और आपका निष्पादन कम हो जाता है। 21. What are the various approaches or perspectives to understand human behavior? Explain. मानवीय व्यवहार को समझने हेतु विभिन्न परिप्रेक्ष्य कौन से हैं? व्याख्या कीजिए। 1. Biological perspectives. It consider human being as nothing but a biological structure. Treating behavior in purely physical terms, it looks at the internal physiological structure. 2. Behavioral perspective. This perspective stays on the role of environmental stimuli in determining the way people act. 3. Psychodynamic perspectives. Focusing on motivational questions about behavior, this perspective examines the role of internal processes. It believes that each behavior has a cause and that cause is to be found in the mind. 4. Cognitive perspectives. The main focus of this view is on how people know, understand, and think about the world. 5. Humanistic perspectives. Often termed as a third force, this perspective view human as basically good and responsible beings. 6. Indian perspective. The Indian thought system has discussed the problem of human life from a broader perspectives.
एक, जैविक दृष्टिकोण। यह मनुष्य को एक जैविक संरचना के अलावा और कुछ नहीं मानता है। व्यवहार को विशुद्ध रूप से भौतिक दृष्टि से देखते हुए यह आंतरिक शारीरिक संरचनाओं को देखता है। दो, व्यवहार संबंधी परिप्रेक्ष्य। यह परिप्रेक्ष्य लोगों के कार्य करने के तरीके को निर्धारित करने में पर्यावरणीय उत्तेजनाओं की भूमिका पर जोर देता है। तीन, मनोगतिक परिप्रेक्ष्य। व्यवहार के बारे में प्रेरक प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह परिप्रेक्ष्य आंतरिक प्रक्रियाओं की भूमिका की जांच करता है। यह मानता है कि प्रत्येक व्यवहार का एक कारण होता है और वह कारण मन में खोजना होता है। चार, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य। इस दृष्टिकोण का मुख्य फोकस इस बात पर है कि लोग दुनिया के बारे में कैसे जानते हैं, समझते हैं और सोचते हैं। पाँच, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अक्सर तीसरी शक्ति के रूप में कहा जाता है। यह परिप्रेक्ष्य मनुष्य को मूल रूप से अच्छे और जिम्मेदार प्राणी के रूप में देखता है। 6, भारतीय परिप्रेक्ष्य। भारतीय विचार प्रणाली ने मानव जीवन की समस्याएं पर व्यापक दृष्टिकोण से चर्चा की है। 22, लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। इलोबरेट। सीखने को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, सुविस्तार दीजिए। There are certain factors that affect learning. A. Reinforcement. Learning requires motivation and reinforcement is an important aspect of motivation. A reinforcement is anything that strengthens a response and increases the probability of its occurrence. A reward is an example of reinforcement. Reinforcement is of two types, that is primary and secondary. B. Feedback or knowledge of results. It is another motivational variable. If you are provided with knowledge of results or feedback, the efficiency of your learning is increased. C. Distribution of practice. The length of the practice session and distribution of rest periods between trials affect the progress of learning to a great extent. D. Whole and part learning. If you have learned this entire lesson in totally, it would have been difficult for you to learn, as it is easier to learn it in parts than as a whole. But if the content is very long, it may first be learned in parts and then as a whole. E. Meaningfulness. Meaningfulness of the material to be learned contributes to your learning efficiency. If the material to be learned is meaningful, the rate of learning becomes rapid. The more meaningful the material, the fewer the trials or practice sessions are required to learn it. F. Interest and attitude. If you are interested in learning to learn and recognize that it will help you in achievement of your goals, you develop a favorable attitude towards the lesson on learning and make sincere effort to learn and remember it. If one feels that nothing worthwhile will result from learning something, one's rate of or progress of learning will be poor. सीखने को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। क. सुदृढ़ीकरण। सीखने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है और सुदृढ़ीकरण प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक सुदृढ़ीकरण कुछ भी है जो एक प्रतिक्रिया को मजबूत करता है और इसकी घटना की संभावना को बढ़ाता है। एक इनाम सुदृढ़ीकरण का एक उदाहरण है। सुदृढ़ीकरण दो प्रकार का होता है, अर्थात प्राथमिक और द्वितीयक। ख. प्रतिक्रिया या परिणामों का ज्ञान। यह एक और प्रेरक चर है। यदि आपको परिणामों या प्रतिक्रिया का ज्ञान प्रदान किया जाता है तो आपकी सीखने की दक्षता बढ़ जाती है। ग. अभ्यास का वितरण। अभ्यास सत्र की लंबाई या परीक्षणों के बीच आराम की अवधि का वितरण सीखने की प्रगति को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। घ. संपूर्ण और आंशिक शिक्षा। यदि आपने इस पूरे पाठ को समग्रता में सीख लिया होता तो आपके लिए इसे सीखना कठिन होता, क्योंकि इसे समग्र रूप से भागों में सीखना आसान होता है। लेकिन अगर सामग्री बहुत लंबी है तो इसे पहले भागों में और फिर समग्र रूप से सीखा जा सकता है। अंग. अर्थपूर्णता। सीखी जाने वाली सामग्री की सार्थकता आपकी सीखने की क्षमता में योगदान करती है। यदि सीखी जाने वाली सामग्री सार्थक है तो सीखने की दर तेज हो जाती है। सामग्री जितनी अधिक सार्थक, इसे सीखने के लिए जितने कम परीक्षण का या अभ्यास सत्र की आवश्यकता होती है। च. रुचि और दृष्टिकोण। यदि आप सीखने में रुचि रखते हैं और पहचानते हैं कि यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा तो आप सीखने पर पाठ के प्रति एक अनुकूल दृष्टिकोण विकसित करते हैं और इसे सीखने और याद रखने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं। अगर किसी को लगता है कि कुछ सीखने से कुछ भी सार्थक नहीं होगा तो उसकी दर या सीखने की प्रगति खराब होगी। 23. Elaborate on the various aspects or area of human development. मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों का सुविस्तार दीजिए। 1. Physical. Physical development is about the physique, that is height and weight. 2. Motor. Motor development is about the muscular development and coordination. 3. Cognitive.
Cognitive development is about mental growth and intellectual development. 4. Language. Language development is about the way children learn language and the age at which they acquire different components of language. 5. Personality development. It is about the total development of personality. 6. Psychosocial. Psychosocial development is about the cultural and societal influences on personality. 7. Emotional. Emotional development is about different emotions at various stages and how they grow over a period of time. 8. Moral. It deals with what is right and what is wrong, the age at which this knowledge is acquired, and with the rules of punishment and justice. Development of conscience and values also come under the domain of moral development. 9. Vocational. It deals with choices about career and how they arise and are pursued in life. 1. शारीरिक. शारीरिक विकास शरीर के विकास से संबंधित होता है, अर्थात शरीर की लंबाई तथा भार. 2. गतिक. गतिक विकास मांसपेशियों के विकास और समन्वय से संबंधित होता है. 3. संज्ञानात्मक. संज्ञानात्मक विकास का अर्थ मस्तिष्क वृद्धि तथा बौद्धिक विकास से है. 4. भाषा. भाषा विकास बच्चों के भाषा सीखने से संबंधित है तथा किस उम्र में वे भाषा के विभिन्न घटकों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं. 5. व्यक्तित्व विकास. इसका अर्थ व्यक्तित्व के समग्र विकास है. 6. मनोसामाजिक. मनोसामाजिक विकास का तात्पर्य सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रभावों का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ने से है. 7. संवेगात्मक. संवेगात्मक विकास विभिन्न संवेगों के बारे में है कि वे संपूर्ण अवधि में कैसे बढ़ते हैं. 8. नैतिक. इससे यह जानकारी मिलती है कि क्या सही और क्या गलत. इस उम्र में इस ज्ञान को अर्जित करने की जरूरत होती है तथा न्याय और दंड के नियमों की जानकारी भी होती है. नैतिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत विवेक तथा मूल्य भी आते हैं. 9. व्यावसायिक. यह कैरियर के चयन के बारे में होता है तथा वे जीवन में कैसे पनपते हैं तथा उन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है. 24. What are the steps for self-instructional training? आत्मनिर्देशात्मक प्रशिक्षण के कौन से चरण हैं? Self-instruction training. This kind of instruction focuses on the development of major skill area, emphasizing self-talking responses. The steps of self-instruction are as follows. 1. Teaching problem identification. 2. Teaching self-integration skill. 3. Teaching attention, focusing and appropriate responding skills. 4. Teaching self-reinforcement skills so that the youngster evaluates his own responses and rewards the adaptive ones. 5. Self-correction and coping option enable the youngster continuously to monitor his behavior, evaluate alternatives and arrive at optional solutions. आत्मनिर्देशात्मक प्रशिक्षण. इस प्रकार का निर्देशन आत्मवार्ता अनुक्रियाओं पर जोर देकर कुशलता के मुख्य क्षेत्रों के विकास पर बल देता है. आत्मनिर्देशन को निम्नलिखित चरण हैं. 1. समस्या को पहचानने का प्रशिक्षण. 2. आत्म प्रश्न विषयक कौशल का शिक्षण. 3. अवधान का शिक्षण, उपयुक्त कौशलों पर जोर देना और प्रतिक्रिया करना. 4. आत्म पुनर्बल कौशल का शिक्षण करना जिससे बच्चे अपनी अनुक्रियाओं का मूल्यांकन कर सकें और ग्रहण करने वाली अनुक्रियाओं को पुरस्कृत कर सकें. 5. आत्म सुधार और सफलतापूर्वक निपटने के विकल्प बच्चों को अपने व्यवहार का निरीक्षण करने, विकल्पों का मूल्यांकन करने और वैकल्पिक समाधान और पहुंचने के योग्य बनाते हैं. 25. Explain the main aspects which are kept in mind while dealing with the social world. सामाजिक जगत के प्रति व्यवहार करते समय जिन मुख्य प्रश्नों को ध्यान में रखा जाता है उनकी व्याख्या कीजिए. 1. Physical attractiveness. It has generally been found that we react more positively to people who are viewed as physically attractive. 2. Similarity and complementarity. We like people who are similar to ourselves. 3. Familiarity and propinquity. Friendship often develops with people whom we see more often. Repeated interpersonal contacts often lead to interpersonal attraction. 4. Reciprocal linking. We often tend to avoid those who express negative views about ourselves and want to be with those who like us. 5. Affect. Affect refers to the feelings and emotions which vary in intensity and direction. 6. Need for affiliation. We spend a lot of our free time interacting with other person because affiliation improves the chances of survival. 7. Enduring relationships.
Many of our relationships continue for long period of time. They may be lifelong like friendship, marriage, etc. 8. Close friendship. Close relationship is found when friends spend a considerable amount of time together, interact in a number of settings, and provide emotional support to each other. 1. शारीरिक आकर्षण. आमतौर पर यह पाया गया है कि हम उन लोगों के प्रति अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं जिन्हें शारीरिक रूप से आकर्षक माना जाता है. 2. समानता और पूरकता. हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो खुद से मिलते जुलते हों. 3. परिचित और निकटता. दोस्ती अक्सर उन लोगों के साथ विकसित होती है जिन्हें हम अधिक बार देखते हैं. बार बार पारस्परिक संपर्क अक्सर पारस्परिक आकर्षण का कारण बनते हैं. 4. पारस्परिक पसंद. हम अक्सर उन लोगों से बचते हैं जो अपने बारे में नकारात्मक विचार व्यक्त करते हैं और उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो हमें पसंद करते हैं. 5. प्रभाव. प्रभाव उन भावनाओं को संदर्भित करता है जो तीव्रता और दिशा में भिन्न होती हैं. 6. संबद्धता की आवश्यकता. हम अपना बहुत सारा खाली समय अन्य व्यक्तियों के साथ बातचीत करने में बिताते हैं क्योंकि संबद्धता से बचने की संभावना में सुधार होता है. 7. अस्थायी संबंध. हमारे कई रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं. वे जीवन भर के हो सकते हैं जैसे दोस्ती, शादी आदि. 8. घनिष्ठ मित्रता. घनिष्ठ संबंध तब पाया जाता है जब मित्र एक साथ काफ़ी समय बिताते हैं, कई सेटिंग्स में बातचीत करते हैं और एक दूसरे को भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं. सेक्शन बी. ऑप्शन 1 वर्ल्ड ऑफ वर्क. 26. क्लॉस्ट्रोफोबिया इज़ द फियर ऑफ बी क्लोज्ड प्लेस. संवृत स्थान भीति डर है बंद स्थानों का. 27. स्टेट द इफेक्टिव रिएक्शंस टू स्ट्रेस. दबाव के प्रति भावात्मक प्रतिक्रियाओं का उल्लेख कीजिए. Affective reactions. These reactions are emotional responses. People suffering from stress get affected quickly and manifest symptoms of anxiety, depression, anger, irritability, and having poor control over the emotions. सकारात्मक प्रतिक्रियाएं. ये प्रतिक्रियाएं भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं. तनाव से पीड़ित लोग जल्दी प्रभावित होते हैं और चिंता, अवसाद, क्रोध, चिड़चिड़ापन और भावनाओं पर खराब नियंत्रण के लक्षण प्रकट करते हैं. 28. डिफाइन वर्क मोटिवेशन. कार्य प्रोत्साहन की परिभाषा दीजिए. वर्क मोटिवेशन इज अ सेट ऑफ एनर्जेटिक फोर्सेस दैट ऑरिजिनेट बोथ विदिन एज वेल एज बियॉन्ड एन इंडिविजुअल्स बीइंग to initiate work related behavior and to determine its form, direction, intensity and duration. कार्य प्रेरणा ऊर्जावान शक्तियों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति के भीतर और साथ ही साथ काम से संबंधित व्यवहार शुरू करने और उसके रूप, दिशा, तीव्रता और अवधि को निर्धारित करने के लिए उत्पन्न होता है. 29. डिस्कस द स्टेजेस ऑफ वोकेशनल डेवलपमेंट. व्यावसायिक विकास के चरणों पर चर्चा कीजिए. The stages of vocational development may be described as follow. 1. Early exploration. This involves first job. It can be part-time or a temporary job. 2. Exploration and trial. In this stage, a person explores more avenues and in the end try to settle in a job of his or her liking. This stage is called floundering stage. 3. Establishment and maintenance. During this stage, a person establishes himself or herself in one field of work and then continue to maintain in it. 4. Retirement. Here the person tends to narrow down his or her responsibilities depending upon the capability of the person. He may either leave the job or shift to a job with lesser responsibility. व्यावसायिक विकास के चरणों की व्याख्या निम्नानुसार की जा सकती है. 1. पूर्ण संवेषण. इसमें पहला व्यवसाय शामिल है. यह पूर्णकालिक या अंशकालिक हो सकती है. 2. समन्वेषण एवं परीक्षण. इस चरण में व्यक्ति और अधिक अवसरों का परीक्षण करता है तथा अंत में अपनी रुचि के व्यवसाय में स्थापित होने का प्रयास करता है. इस चरण को दलदली चरण भी कहते हैं. 3. स्थापन तथा अनुरक्षण. इस चरण के दौरान एक व्यक्ति कार्य के एक क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करता है तथा उस क्षेत्र में स्वयं को बनाए रखता है. 4. सेवानिवृत्ति.
यहाँ व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों को कम करने लगता है। व्यक्ति स्वयं की क्षमताओं के अनुसार या तो नौकरी छोड़ देता है या कम उत्तरदायित्व वाली नौकरी में चला जाता है। ये कार्य जगत में प्रविष्ट होने के बाद कैरियर विकास के चरण हैं, किंतु कैरियर विकास अभिरुचि के प्रारंभिक अन्वेषण से प्रारंभ होता है। वास्तव में कैरियर विकास के चरण व्हीलर द्वारा परिभाषित जीवन चरण एवं व्यावसायिक विकास के चरणों में शामिल है। 30. एक्सप्लेन द वेरियस जॉब रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। कार्य जगत में विभिन्न नौकरियों से संबंधित अर्हताओं की व्याख्या कीजिए। 1. एज रिक्वायरमेंट्स। व्हेन यू लुक इनटू रिक्वायरमेंट्स फॉर सम जॉब इन द एडवर्टाइजमेंट्स यू विल फाइंड दैट एज रेंज इज मेंशन्ड। 2. Gender requirement. In some job, however, the gender requirement is kept in view of the job profile, the area and place of work. 3. Citizenship requirements. Generally, the government job in any country are open to her citizens. 4. Physical requirements. All the occupations require good general health, but some of the job demand heavy physical activity and stamina, such as police, armed services, etc. 5. Personality requirements. Some job need smart young men and women with pleasing personality for the job, like receptionist, salesmen, and women. 6. Educational and training requirements. Educational requirement for different job are different. 7. Experience requirements. Some job require experience because with experience one can work better and is also in a position to guide and supervise others. 8. Legal requirements. Some prestigious job needs clean character and has not been convicted by the legal authorities for any crime. 9. Licensing. If you have a vehicle, then you must be having a license to drive it. 1. आयु आवश्यकताएं। जब आप विज्ञापनों में कुछ नौकरियों के लिए आवश्यकताओं को देखते हैं तो आप पाएंगे कि आयु सीमा का उल्लेख किया गया है। 2. जेंडर आवश्यकताएं। हालांकि कुछ नौकरियों में जेंडर आवश्यकताओं को जॉब प्रोफाइल, क्षेत्र और कार्य के स्थान को ध्यान में रखते हुए रखा जाता है। 3. नागरिकता आवश्यकताएं। आमतौर पर किसी भी देश में सरकारी नौकरी उसके नागरिकों के लिए खुली होती है। 4. शारीरिक आवश्यकताएं। सभी व्यवसायों के लिए अच्छे सामान्य स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ नौकरियां भारी शारीरिक गतिविधि और सहनशक्ति की मांग करती है, जैसे पुलिस, सशस्त्र सेवाएं आदि। 5. व्यक्तित्व आवश्यकताएं। कुछ नौकरी के लिए आकर्षक व्यक्तित्व वाले स्मार्ट युवा पुरुषों और महिलाओं की आवश्यकता होती है, जैसे रिसेप्शनिस्ट। 6. शैक्षिक और प्रशिक्षण आवश्यकताएं। विभिन्न नौकरियों के लिए शैक्षिक आवश्यकताएं अलग अलग हैं। 7. अनुभव की आवश्यकताएं। कुछ नौकरियों के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, क्योंकि अनुभव के साथ कोई बेहतर काम कर सकता है और दूसरों का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने की स्थिति भी होता है। 8. कानूनी आवश्यकताएं। कुछ प्रतिष्ठित नौकरी के लिए स्वच्छ चरित्र की आवश्यकता होती है और किसी भी अपराध के लिए कानूनी अधिकारियों द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। 9. लाइसेंसिंग। यदि आपके पास कोई वाहन है तो उसे चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ऑप्शन 2 26. पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट मेथड इन अ प्ले सेंटर इंक्लूड डी ऑल ऑफ द एबव। किसी प्ले सेंटर में माता पिता की संतलिप्तता का तरीका है, डी उपरोक्त सभी। 27. व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन प्ले सेंटर। किसी प्ले सेंटर में माता पिता की संलिप्तता का कार्य क्षेत्र क्या है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्चुअलाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स, ऑफ हेल्पिंग पेरेंट्स डिस्कवर देयर स्ट्रेंथ, पोटेंशियलिटीज एंड टैलेंट्स एंड ऑफ यूजिंग देम बेनिफिशियली। माता पिता की साझेदारी की प्रक्रिया उनकी साझेदारी को वास्तविक स्वरूप प्रदान करके माता पिता को उनकी शक्तियों, उनकी क्षमताओं तथा कौशलों से अवगत कराने तथा लाभप्रद रूप से उनका उपयोग करने में सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है। 28. व्हाट इज़ द डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्ले इक्विपमेंट। खेल के अच्छे उपकरण की क्या विशेषताएं हैं। डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स: मल्टी यूज़, सेफ, चाइल्ड सेफ, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, प्रोपोर्शनेट एंड क्वांटिटेटिव, फ्लेक्सिबल। डिज़ाइन की विशेषताएं: बहुउपयोगी, सुरक्षित, बच्चे के लिए सुरक्षित, विभिन्न सामग्रियों, अनुपातिक तथा मात्रात्मक, लचीले। 29. इलोबरेट ऑन द बेसिक फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन के मूलतः प्रकारों पर सुविस्तार दीजिए।
There are three basic forms of discipline. One, authoritarian discipline. When this kind of discipline is enforced, the child is directed what to do and what not to do, and no explanations are offered. Also, the child is expected to show complete obedience. Children do not feel happy in this type of environment. They always look for instruction and never grow up. 2. Permissive discipline. The child is allowed to do whatever he pleases to do and whenever he pleases to do. There are no rule and no guidance or explanation provided. This type of behavior will make them self-centered and selfish. 3. Democratic discipline. Rules are explained before they are enforced. Children can question rule and the same can be modified with joint consent. Children are allowed freedom to do the things on their own, but they have to ensure that they do not hurt themselves or other around. अनुशासन के तीन मूल रूप हैं। एक, अधिनायकवादी अनुशासन। जब इस प्रकार का अनुशासन लागू किया जाता है तो बच्चे को निर्देशित किया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है। साथ ही बच्चे से पूरी आज्ञाकारिता दिखाने की अपेक्षा की जाती है। इस तरह के माहौल में बच्चे खुश नहीं होते हैं, वे हमेशा निर्देशों की तलाश करते हैं और कभी बड़े नहीं होते हैं। 2. अनुमय अनुशासन। बच्चे को वह करने की अनुमति है जो वह करना चाहता है और जब भी वह करना चाहता है। कोई नियम नहीं है और कोई मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार का व्यवहार उन्हें आत्मकेंद्रित और स्वार्थी बना देगा। 3. लोकतांत्रिक अनुशासन। नियमों को लागू करने से पहले समझाया जाता है। बच्चे नियमों पर सवाल उठा सकते हैं और उन्हें संयुक्त सहमति से संशोधित किया जा सकता है। बच्चों को अपने दम पर काम करने की आज़ादी है, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे खुद को या दूसरों को चोट न पहुंचाएं। 30. एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन अर्ली चाइल्डहुड। प्रारंभिक बालकाल में विकास की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। Characteristics of development in early childhood. A. Features of cognitive development. B. Features of physical development. C. Features of emotional development. D. फीचर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास की विशेषताएं। क. ज्ञानात्मक विकास के लक्षण। ख. शारीरिक विकास के लक्षण। ग. संवेगात्मक विकास के लक्षण। घ. सामाजिक विकास के लक्षण। See description for link of February 2021 solved question paper of 3 to 8 psychology.